جنت کا چاند عرش کا ستارہ حسین ہے. جنت کا چاند عرش کا ستارہ حسین ہے. جو نہ کبھی وہ ڈوبے وہ تارا حسین ہے. جو نہ کبھی وہ ڈوبے وہ تارا حسین ہے. شہادت تو دیکھیے زہرا کے لال کی. شہادت کو دیکھیے زہرا کے لال کی. ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین. ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین. تصویر کائنات میں عکاش ہے علی. تصویر کائنات میں عکاش ہے علی. دلوں کو جو جگہ دے وہ احساس ہے علی. دلوں کو جو جگہ دے وہ احساس ہے علی. کہ اے بندے مومن تیرا دل کیوں اداس ہے. اے بندے مومن تیرا دل کیوں اداس ہے. ارے نعرہ لگا کے دیکھ تیرے پاس ہے علی. ارے نعرہ لگا کے دیکھ تیرے پاس ہے علی. نعرہ سوال کربلا کے صبر کے پیکر کا نام عباس ہے. کربلا کے صبر کے پیکر کا نام عباس ہے. یوں سمجھیے دوسرے حیدر کا نام عباس ہے. یوں سمجھیے دوسرے حیدر کا نام عباس ہے. کہ کیا زمانے کی حرارت سے پگھل سکتا تھا وہ. کیا زمانے کی حرارت سے پگھل سکتا تھا وہ. رائے کے قیمتی پتھر کا نام عباس ہے. رائے کے قیمتی پتھر کا نام عباس اور تیسری کو جمع ہوئی فوج اہل شام. چوتھی کو ہوئی شمر کے آنے کی دھوم. اور 5 ستم بھر گیا تمام. نرگاہ ہوا چھٹی کو شہر مشرقین تھے. اب تم پہ بند ہو گیا پانی حسین تھے. دریا پہ مر گیا جو برادر حسین کا. دریا پہ مر گیا جو برادر حسین کا. پامال ہو کے گر پڑا لشکر حسین کا. کیا سمجھو کوئی مومن رتبہ حسین کا. طفلی گری ہے آج میرے نور عین کا. عباس جب جانب باغ دنا چلے. عباس جب جانب باغ دنا چلے. لے کر 1000 شام سے شہ کے نشان چلے. جوزا پکاری اے میرے والی کہاں چلے. بولے جہاں سے اب نہ پھریں گے وہاں چلے. تو آخری ودا کی ہے باری نہ آئے گی. ارے آئی شب کی لاش ہماری نہ آئے گی.
باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید واصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول صلوات محمد حضرت آج کی تاریخ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل على محمد امام حضرت رسالت کی تاریخ ہے. اسی لیے میں نے سوچا کہ قرآن کے ذریعے سرور کائنات کی اس حدیث کو وما محمد الا رسول. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیے قرآن مجید ہمارے لیے جو ہدایت کتاب ہے. اہل بیت کا دامن پکڑیں گے تبھی ہدایت ملے گی. بغیر کے دامن کے جو ہے اہل بیت کے قرآن سمجھ میں آئے گا ہی نہیں. لیکن بہت ایسی چیزیں ہیں برابر سنا ہے اس کا ترجمہ آج تک کوئی بتا ہی نہیں سکا. بہت بڑے بڑے ترجمہ کرنے والے ہوئے لیکن الف لام میم کا ترجمہ کوئی نہیں بتا پایا, یاسین کا ترجمہ کوئی نہیں بتا پایا. اس ترجمہ کو سمجھنے کے لیے در اہل بیت پہ ہی آنا پڑے گا, بغیر در اہل بیت کے سمجھ میں نہیں آ سکتا. 4 جملہ ہے اس میں, وما محمد الا رسول. لیکن یہ 4 قرآن کا ایک جملہ بھی ہے ایسا ہے کہ میں چیلنج دیتا ہوں کہ یہ قاری قرآن حافظ قرآن بہت اپنے کو فخر کرتے ہیں, بلکہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ شیعہ میں حافظ ہوتے ہی نہیں ہیں. ارے شیعہ میں حافظ نہیں, میں شیعہ میں محافظ ہوتے ہیں. اس لیے کہ جتنے بڑے بڑے معصوم کی بات چھوڑیے, معصوم کا مرتبہ تو چھوڑیے, ان کا تو مرتبہ ان کے پیر کے دھول کے برابر رہی ہے. ہمارے جو بڑے بڑے عالم دین ہیں ان کے پاس جب پہنچیے گا تب تو پتہ چلے گا قرآن مجید کیا ہے. یہ قاری قرآن رٹ لیتے ہیں, حفظ کر لیتے ہیں. پتہ چلا کہ حفظ کرنا بہت آسان ہے لیکن جو ہے اس کا اثر پانا بہت مشکل ہے. اس کا اثر پانے کے لیے در اہل بیت پانا ہوگا, چاہے بڑے بڑے شیعہ کے عالم کے پاس. صلوات محمد والے آخر کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اس لیے سمجھ میں نہیں آئے گا کہ قرآن مجید کے حکم ہے 114 سورہ ہے, پوری سورہ سمٹ کے ایک سورہ میں, الحمد کی سورہ میں الحمد سمٹ کے بسم اللہ میں, بسم اللہ سمٹ کے بے میں, بے کے نیچے نقطہ. مولا کائنات کہتے ہیں میں وہی نقطہ ہوں. ارے جو اگر نقطے کو جس نے نہ پکڑا تو اس کو کلام پاک سمجھ میں کہیں آئے گا. اگر نقطے کو پکڑ لیا جس نے اس کو پوری کلام پاک سمجھ میں آئے گی. لیکن نقطے سے ایسا گزرا, رٹتے رہے رٹتے رٹتے مر گئے, لیکن ایک بھی آیت پر جو ہے کہیں کہہ دے گا کہ تفسیرہ کر دیں تو اچھے سے تفسیرہ نہیں کریں گے, اس لیے کہ در اہل بیت سے دور. زیادہ لمبی گفتگو نہیں ہو سکتا ہے, یہ اتنا ہم لوگ پاس مسئلہ نہیں ہے کہ کچھ لوگوں کے تابوت کی منزل چھوٹ بھی جائے. چھوٹنا اس لیے ضروری ہے کہ 7 بجے کا اعلان ہے, 7 پونے 8 ہو چکا ہے لیکن ابھی تک لوگ یہ کچھ لوگ جو ہے مسائب میں آتے ہیں, کچھ لوگ جو ہے نواخانی میں آتے ہیں, کچھ لوگ ہو سکتا ہے کہ ماتم میں آئیں, کچھ لوگ تبرک میں بھی آئیں. برابر ایسا ہوا ہے. لیکن جو آ گیا نہیں, لمبی پڑھنے کے بعد ہمارے پاس صلاحیت ہے. آپ ہوتے تو 2 گھنٹہ ہی پڑھ سکتے تھے, ہمارے پاس صلاحیت کہاں ہے؟ وہ صلاحیت آپ کے پاس ہے. کامیاب پڑھتے رہیے تو آپ کے پاس اتنا مسودہ ہے, اس لیے کہ بچپنے سے آپ نے داخلی کی ہے, وہ مسودہ ہم لوگوں کے پاس ہے ہی نہیں ہے نا. بات حقیقت ہے, اس لیے کہ ہم لوگ بھائی جو ہے مولا ہے ٹھیک ہے لیکن زیادہ دیر کے لیے. صلوات محمد والے قرآن سمجھنا ہے در علم آئیے. ایک بات ذہن میں آئی, اچھا سب سے بڑی بات بھائی سب سے کہہ دیں, اس لیے کہ دیکھیے اپنا مجمع عالموں کا مجمع ہے. عالم کے مطلب جو ہے
मौलवी से नहीं होता है, वो आलिम दीन है। लेकिन इस पर शरा बैठने वाला सब आलिम है। आलिम जो मतलब चाहे किस इल्म को हासिल कर रहे, साइंस का इल्म हो, चाहे अरबी का इल्म हो, चाहे फारसी का इल्म हो, उर्दू, हर इल्म रखने वाला वो आलिम है। तो अपने फर्श पर बैठने वाला हर इंसान आलिम है, इसलिए कि फर्शदात से उसको इतनी मिल चुका है कि वो जो है कभी कभी ऐसा होता है कि बड़े बड़े आलिम दीन मिंबर पाते हैं, एक नीचे बैठने वाला छोटा इंसान जो है बाद में उनसे सवाल कर देता है, हुजूर ये समझाइए कि कहाँ से आपको कहा है। कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन वो बड़े आलिम दीन है तो समझा देंगे, लेकिन हम उसके पास समझाने का भाई ये नहीं है। अगर कहीं कोई कमी हो तो सबका फर्ज बनता है कि इस्लाह कर दे। इस्लाह करेगा तो हो सकता है कि वो गलती मैं बाद में ना करूँ। अगर बाद में मैं करता हूँ, इस फर्शला बैठने वालों की जिम्मेदारी है, जो आलिम है। इसलिए नहीं, बात हकीकत है, उनकी जिम्मेदारी है कि उन्होंने इस्लाह नहीं किया। लेकिन इस्लाह करने का तरीका कौन होना चाहिए? मासूम का तरीका। जैसे इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मस्जिद में गए, एक बुजुर्गवार वضو गलत कर रहे थे, वक्त के इमाम थे, चाहते तो मासूम थे, कहते गए बुजुर्गवार आपका वضو गलत है। कभी वो बुरा न मानते, लेकिन इमाम हसन इमाम हुसैन थे। लेकिन कहने का देखिए इस्लाह का अंदाज क्या है? ऐ बुजुर्गवार आइए, हम दोनों भाई वضو कर रहे हैं, आप ये देखिए कि किसका वضو सही है, किसका वضू गलत है। दोनों भाइयों ने जब सही वضू किया, बुजुर्गवार ने कहा कि मादत चाहते हैं नवासे रसूल, मेरा वضू जो है गलत था, आज के बाद ये गलती मैं नहीं करूँगा। इस्लाह का अंदाज ये होना चाहिए भाई। कहीं से इस्लाह का फर्ज भी बनता है, इस्लाह जरूर कीजिए। इसलिए कि हम जो है ना आलिम दीन है, ना कोई मुतालिया है, बस एक मौला का आता है, और सबसे बड़ा ये 2 महीना 8 दिन की मजलिस का आता है। इसकी वजह से मिला है ना, तो इसकी वजह से या कभी हम वो इंसान हैं कि कभी माइक पर ऐलान भी मजलिस का नहीं कर पाते, तो बहुत बड़ा करम है। लेकिन इस्लाह जरूरी है। सलवात मोहम्मद वाले कुरान मजीद में 114 सूरत, इतनी बात पढ़ी है। हो सकता है कि ध्यान हमारा जो गया है इसकी इस्लाह भी कर दिया जाए। 112 भी हो सकती थी, 100 में बात गई कि आखिर 114 सूरत क्यों है? 113 भी होती, 115 भी होती, 112 होती, 114 सूरत क्यों है? तो ज़हन में हमारा बात आई कि पहली सूरह अल्लाह की वहदानियत का इकरार करा रही है, और बाद वाली 14 जो सूरह 114 वो बता रही है कि तेरे मासूम पर आओगे तभी ये कलाम पाक समझ में आएगी। परवरदिगार आलम समझा रहा है कि पहले वहदानियत का इकरार करो, उसके बाद चाहते मासूमी के दर पाओ, तभी कुरान समझ में आएगी। इसके अलावा कुरान कहीं समझ मोहम्मद इल्ला रसूल, मोहम्मद कुछ नहीं सिर्फ रसूल। एक जुमला आता है इल्ला, इल्ला जुमला जो है बहुत ज़बरदस्त, हम लोग अरबी पर तबसरा नहीं कर सकते, लेकिन इल्ला जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह, वमा मोहम्मद इल्ला रसूल, ये इतना बड़ा जुमला है कि अगर इस पर आदमी गौर कर ले, इसलिए कि परवरदिगार आलम ने अपनी वहदानियत का इकरार करना हुआ तो बहुत ज़बरदस्त बुत परस्ती थी। पेड़ की पूजा हो रही थी, सूरज की परस्ती हो रही थी, आग की परस्ती हो रही थी, दरिया की, मैंने अपने से जो बड़ा नजर आता था। किसी ने ला के अगर दरवाजे पर जो है आपके अगर अल्लाह पहुंचा दिया तो उसकी पूजा होने लगती थी, भाई तुम रज़्ज़ाक़ हो। लेकिन ये नहीं जान रहे थे कि पहुंचाने वाला कौन है, भेजने वाला कौन है, दरिया ये है भेजने वाला। लेकिन क्या है, तो क्या किया परवरदिगार ने? ला इलाहा इल्लल्लाह, पहले तमाम जितने बुत परस्त का है, जितनी बुत हो रही, पहले इनकार करो कि नहीं है माबूद सिवाय अल्लाह के। उसी तरह सरवर कायनात की जब रिसालत का इकरार करना हुआ तो कहा कि वमा मोहम्मद इल्ला रसूल, नहीं है कोई रसूल सिवाय मोहम्मद के। आखिर क्यों? बड़ी अफसोस आती है कभी कभी इनकी गुफ्तगू सुन के। आखिर जितने आजकल बराबर हंगामा हो रहा है, बराबर जो है सरवर कायनात की जो छिटाकशी हो रही है, आखिर हो कहाँ से रही है? ये हमारी ही गलतियाँ हैं। सरवर कायनात को उम्मी कहते हैं, माज़अल्लाह माज़अल्लाह। इल्म के लिए 40 साल के बाद रिसालत मिली,
कुरान का अगर इसी आयत पर तुम गौर कर लेते हो, वमा मोहम्मद इल्ला रसूल, मोहम्मद कुछ नहीं सिवाय रसूल के, जब से थे तब से रसूल, अभी भी रसूल, तो फिर 40 साल के बाद रसालत मिली कहाँ से? ये तो फिर दुनिया के सामने दिखावा था कि सरवर कायनात जो है पहले तबलीग जो किए, चुप किए, जब एकदम मुकम्मल हो गई तब रसालत का ऐलान किया। सलवात मोहम्मद वाले एक तारिक जमील जो है बहुत बड़े हैं, मद्दा है मौला कायनात भी आजकल कहते हैं कि मौला अली कहना या अली मदद कहना बहुत है, लेकिन एक दिन की गुफ्तगू सुना, इतना अफसोस हुआ कि इतना बड़ा आलिम आदमी क्या कह रहा है, माज़अल्लाह सरवर कायनात की सर्जरी तक करा दी। बताइए कितना जाहिल इंसान है जो खुद पहले से जो है वो नूरी हैं। अल्लाह के बाद अगर सबसे पहले खल्क हुआ तो नूर मोहम्मद खल्क हुआ। परवरदिगार आलम ने है कि मैं एक छुपा हुआ कराना था, मैं चाह के पहचानवाया जाऊँ तो सबसे पहले नूर मोहम्मद को खल्क किया। उसके बाद सरवर कायनात की हदीस आना वली नूर वाहिद, मैं और अली एक ही नूर के दो हिस्से हैं। उसके बाद सरवर कायनात की अव्वलना मोहम्मद व औसतना मोहम्मद व आखिरना मोहम्मद व कुल्लना मोहम्मद, सब के सब मोहम्मद हैं, यानी सब के सब वही नूर के 14 हिस्से हैं। तो उसके बाद ये कहाँ से आया ख्याल कि सरवर कायनात माज़अल्लाह उम्मीद थे? अगर ये समझ गए होते तो ऐसी, इसीलिए जो है दूसरे जब पढ़ेंगे तो इल्ज़ाम लगाएंगे ही। सलवात मोहम्मद वाले हमारे पर एक इल्ज़ाम होता है कि हर मौके पर या अली या अली या अली या अली करते हैं। ऐ नादान, हम या अली कहते क्यों हैं? इसमें बहुत बड़ी बात है। अगर तुम समझ जाते तो फिर कहते नहीं या अली कहते, अली ऐसे कहते हैं कि कम से कम नबी कहने का तरीका मुझे आ जाए। अली देखिए, दादा अली कहिएगा तो जुमला कभी कभी सुनने में नबी हो जाएगा। कोई भी जुमला जब देश कहा जाएगा अली तो हम बताते हैं कि अली कहो, अपने आप जो है वसी को अली कहोगे तो आप हमेशा जो है जब वसी को याद करेगो तो हमेशा जो है उसका बादशाह जो है सामने पाया जाएगा। अली कहते रहो, नबी आता रहे। एक जहन में बात आ जाए, इसकी इस्लाह अगर गलत होगी तो आप कर दीजिएगा। आज एक जहन में बात आ गई कि करबला की जंग जो है किस पर हुई? पानी के लिए। सबसे बड़ा जो देखा जाए तो 3 दिन की जब भी तस्करा होता है करबला में तो भूख के साथ साथ प्यास का, लेकिन सबसे ज़्यादा तस्करा प्यास का होता है, पानी का। जहन में जो है ये भी जो है हम पानी का तस्करा क्यों करते हैं? जब पानी कहिएगा तो उसका जुमला क्या आएगा? वहाँ पर जो है जनाब खदीजा याद आ जाती है। जब पानी कहिएगा तो नानी हो जाएगा। यहाँ तो हम जो पानी करके जनाब खदीजा को याद करते हैं, बताते हैं कि जनाब खदीजा के सुल्ब से जनाब फातिमा ज़हरा आई, जनाब फातिमा के सुल्ब से इमाम हसन आए, इमाम हुसैन आए, इमाम हुसैन ने जो है 3 दिन की भूख और प्यास में इतनी बड़ी कुर्बानी देके इस्लाम को बचाया। जब इस्लाम बचा तो मोहम्मद भी बचे, जनाब खदीजा भी बची, और जनाब खदीजा ने जो अपनी कुर्बानी दी थी पूरी जो है इस्लाम के बदौलत खर्च कर दी थी। अगर इमाम हुसैन ने कुर्बानी न की होती तो पूरी दौलत जो खर्च की हुई होती वो कोई काम ना। सलवात मोहम्मद वाले हमेशा पानी का तस्करा कीजिएगा तो जनाब खदीजा को भी याद कीजिए। जैसे जनाब खदीजा की कुर्बानी जो है उन्होंने दौलत ने उछावर किया, कहा जनाब फातिमा ज़हरा ने कहा मादर ग्रामी आपने इस्लाम के लिए दौलत निछावर किया, हम अपने फर्जंद को इस्लाम के लिए निछावर कर देंगे और 3 दिन की भूख प्यास में निछावर करेंगे। बाबेदा ये कुर्बानी ऐसी है। और ये जो है मौला का बहुत बड़ा करम है कि जितने जहाँ शियान हैदर करार नजर आ रहे हैं बस इस फरशदा के वसीले से बचे। आज देखिए बमबारी होती है, गोलियाँ चलाई जाती हैं, लेकिन शियान हैदर करार कदम पीछे नहीं हटाते। क्यों नहीं हटाते? इसलिए नहीं हटाते कि जानते हैं कि अगर उनको मारेंगे तब भी सवाब, अगर मर गए तब भी सवाब। इसलिए अगर मर गए तो हम शहादत का दर्जा पाएंगे। इसीलिए हमेशा जो है शियान हैदर करार अगर एक परचम अगर बच्चा लिए हुए तो ना उसको गोली का डर है ना उसको कुछ है। सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद इल्ला रसूल,
मोहम्मद कुछ नहीं सिवाय रसूल। अगर सरवर कायनात को समझ लिया जिसने, तभी अहले बैत समझ में आएंगे। जिसने सरवर कायनात को नहीं समझा तो ना अली समझ में ना आएंगे, ना अहले बैत समझ में आएंगे। इसलिए कि इनकी मातबर किताब जो है सियासत्ता में सैकड़ों जगह लिखा हुआ है, कितनी जगह लिखा हुआ है कि जो है सरवर कायनात ने कहा कि या अली, आपका गोश्त मेरा गोश्त, आपका जिस्म मेरा जिस्म। अरबी हम लोग आती नहीं है, का तर्जुमा हम बयान करते हैं। आपका जिस्म मेरा जिस्म, आपका गोश्त मेरा गोश्त, आपका खून मेरा खून। जिसने आपको जिद पहुंचाई उसने मुझे जिद पहुंचाई, जिसने आपको खुश किया उसने मुझे खुश किया। सरवर कायनात ये जान रहे थे कि एक दिन ऐसा आएगा कि कलमा गो मुसलमान जो है मौला कायनात के ऊपर जो है ऐसा हमला करेंगे। तो जब हमला करेंगे इसका मतलब मौला कायनात को जो है हमला नहीं हुआ, वो सरवर कायनात पर हमला हुआ। और जिसने मौला कायनात से मोहब्बत की उन्होंने सरवर कायनात से सलवात मोहम्मद। हम लोगों के पास वो ज़बान में ताकत कहाँ कि ना अहले बैत के फदाइल बयान कर सकते हैं। इसलिए इस ज़बान में ताकत ही नहीं है, बड़े बड़े की ताकत नहीं है अहले बैत के फदाइल बयान करना। लेकिन इनके पास इनकी जब क्या है, सबसे बड़ी बात एक जुमला हमारे पे इस्तेमाल होता है कि सहाबी को बुरा करता है। हम तो लानत भेजते हैं सहाबी को बुरा करने वाले, आप सबसे लानत भेजाएंगे। इसलिए कि सहाबी को हम बुरा नहीं कहते हैं, बुरे को सहाबी नहीं मानते हैं। ये हमारा कभी सहाबी को जो है हम बुरा नहीं कहते, जो सहाबी को, इसलिए कि सलमान को बुरा कहिएगा, अबू ज़र को बुरा कहिएगा, मिक़दाद को बुरा कहिएगा। इसलिए कि हमारा यही फैसला, सहाबी को जो बुरा कह दे वो इस्लाम का ही नहीं है। लेकिन फर्क है कि ना सहाबी को बुरा कहते हैं और ना बुरे को कभी सहाबी मानते हैं। इसलिए बुरे को सहाबी माने हैं कैसे? जो बुरा हो फिर सहाबी कहाँ से रहा? सहाबी का मतलब क्या हुआ? सरवर कायनात की सोहबत में बैठने वाला। और सोहबत में बैठने वाला अगर सोहबत में बैठ के सबक न ले तो फिर उस सोहबत में बैठना बेकार है। सहाबी उसी जो सरवर कायनात के साथ साथ रहा उसको सोहबत में रहा सहाबी कहा गया। तो सोहबत में रह के अगर थोड़ा सा भी न लिया तो फिर उस सहाबी कहाँ से कहलाया? हाँ, वहाबी भी नहीं, वहाबी तो हद के लिए हैं, इसलिए कि कम से कम वो नमाज पढ़ते हैं बड़े दिखावे के लिए, लेकिन जो ये हैं ये उसके लायक भी नहीं है। सरवर कायनात हम लोग जो है जितने बैठे हैं किसी मासूम को देखा नहीं, और एक मासूम के इंतजार में सब बैठे, या सबकी दुआ यही रहती है बराबर कि इमाम ज़माना का ज़हूर हो। उसके साथ साथ हमें ये भी दुआ करनी चाहिए कि या मौला मुझे उस काबिल समझिएगा, कोई गुनाहगार हो तो गुनाहों को माफ़ करके मेरे आँख में वो बिनाई दे कि आपकी ज़ियारत नसीब हो जाए। इसलिए कि अगर हम उस काबिल नहीं रहेंगे तो मौला की ज़ियारत नसीब नहीं होगी। एक वाक़या उनके नायब का, आयतुल्लाह वजद दर्स दे रहे थे। कुछ जो है यूनिवर्सिटी से बच्चे कुछ आए हुए थे दर्स देने के लिए, आए उनके पास, उसमें से एक तलबा जो है वो जो है बहुत गलत था, उसको ये एहसास था कि गलत है। देखिए जो भी इंसान गलती करके अगर अपने गलती पर नादिम हो जाए तो परवरदिगार आलम उसकी गलती को बहुत जल्दी माफ़ करता है। गलती करता रहे अपने गलती पर नादिम ना हो तो उसकी गलती माफ़ नहीं होती। वो गया बैठा हुआ था, देख रहा है कि आयतुल्लाह वजद जो है सबके सामने जो है सबसे मिल रहे हैं, सबको गुफ्तगू कर रहे हैं, सबको दर्स दे रहे हैं, उसके तरफ नजर उठा के देखा ही नहीं। वो बाहर निकला, बहुत मायूस खड़ा था। जो उनके शागिर्द थे वो भी बहुत बड़े आलिम थे, उनसे कहा कि ऐसी सी बात है, कहा कि तुम जानते नहीं हो आयतुल्लाह वजद के पास वो इल्म है वो अंदर तक को झाँकते थे।
तुमने कोई बुरा इस पर बताया कि मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, लेकिन क्या है, हर हफ्ते बच्चे आते थे। वो बच्चा गया, जाने को छुट्टी पहुंचने के बाद इस्तग़फ़ार किया, और ऐसा इस्तग़फ़ार किया कि अपने को जो है एकदम इस्तग़फ़ार करके परवरदिगार आलम की बारगाह में सरखम हो गया, कि पालने वाले आज के बाद ये कोई गलती, अब वाकई में वो जो है एक गलती उसके बाद नहीं किया। फिर हफ्ते में जब गया है, जब हफ्ते में पहुंचा है, तो आयतुल्लाह वहदत जो है सबसे पहले उसी को बुला रहे हैं, बुलाने पर उसको दर्श दे रहे हैं। तो जब नायब इमाम का ये हाल है, इमाम ज़माना का जब ज़हूर होगा तो हमारा हाल क्या है? इसलिए हम जानते हैं, हम लोग बैठे हैं मिंबर पर, ये बस करम है, लेकिन कितने गुनाहगार हैं वही है जो अपने अंदर झांके। हम झांकते हैं तो हम समझते हैं कि हम इस पर बैठने के लायक नहीं हैं, लेकिन इसलिए बैठे हैं कि हो सकता है कि इसके वसीले से जो है, मिंबर के वसीले से, मोहम्मद वाले मोहम्मद की खुशबू के वसीले से मेरी गुनाह माफ़ हो जाएं, और आगे मुझे गुनाह से रोकें मोहम्मद वाले को। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए आपको बताएं अहले बैत का मुकाम और रिसालत का मुकाम और सहाबा का मुकाम। 4 चीज़ें हैं, अल्लाह की वहदानियत, सरवर कायनात की रिसालत, अहले बैत अता और सहाबा। सहाबा का तस्करा इसीलिए हम कहा है, पहले कर दिया है कि जब सहाबा की इसमें तस्करा करेंगे तो हो सकता है कि जहन में ये बात आए कि सबको सहाबी माने, सबको हम सहाबी नहीं मानते। ये 4 सुकून हैं उम्मत के 4 सुकून। मान लिया आप कहिएगा तो लोगों से टूट गया, किसी आने में या मासूम ने, तो लोगों ने कहा कि ये आखिर जो है एक जगह इकट्ठा कहाँ दिखाई देगी। तो आपको बता दी, ये इकट्ठा देखना है जाइए मस्जिद नबी में। मस्जिद नबी में जाइएगा, मस्जिद किसकी है? अल्लाह की, अल्लाह का घर है। नमाज कौन पढ़ा रहा है? कायनात का रसूल नमाज पढ़ा रहा है। सहाबा कहाँ हैं? पीछे हैं। पुष्प कौन है? अहले बैत है। सवाल कौन है? अहले बैत सवाल। अब यहाँ देखिए मर्तबा कितना बड़ा है। अहले बैत का मर्तबा परवरदिगार आलम ने कहीं कहीं पर जो है मर्तबा इसलिए बताया कि जानते थे कि ये जो है इसमें कुछ ऐसे भी है जो मर्तबा को नहीं समझेंगे, गद्दारी करेंगे। ये सब जो मौज़ात में है, चाहे इमाम हसन का पुष्प पर बैठना या जो है ऐसा, ये सब खाली जो है इनकी तबलीग के लिए। अब वहाँ देखिए वहाँ क्या है? अल्लाह की मस्जिद, रिसालत नमाज पढ़ा रही है, सहाबा पीछे हैं, अहले बैत पुष्प पर सवार है। अब हिम्मत नहीं है कि सहाबा जो है सरवर कायनात के सर के पहले सर उठा ले। हिम्मत है? नहीं। सरवर कायनात को हुक्म है कि जब तक अहले बैत अपने से न उतरे उस वक्त न उतरना। वही को जो है जिब्रील को इंतजार है कि वही लेके जाए, वही को इंतजार है कि परवरदिगार आलम को हुक्म दे। परवरदिगार आलम का हुक्म है, ये है इंतजार है कि इमाम हुसैन जो है जैसे ही पुष्प ऊपर उतरे तब वही नाजिल हुई। देखिए क्या मर्तबा है मौला हुसैन का। मौला हुसैन का मर्तबा अगर बताया है इस वाक़े से, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने बताया, दीन अस्त हुसैन दीन है। अगर सरवर कायनात सर उठाते तो हुसैन माज़ल्ला माज़ल्ला बल्कि दीन गिर जाता। यहाँ पर जो है परवरदिगार आलम ने जो है हुक्म दे के जो है दीन को बचाया है। यही दीन मौला हुसैन जो है पूरे अपने खानवादे के साथ करबला के मैदान में जो है कुर्बानी दे के दीन को बचाया। सलवात मोहम्मद। एक वाक़या, उसके बाद फिर इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बाद बच्चे मसाइल। देखिए सरवर कायनात का मर्तबा जो है कितना बड़ा है। आज सबसे मर्तबा देखा जाए तो जनाब अबू तालिब का है, इसलिए कि जनाब अबू तालिब ने सरवर कायनात की हिफाजत की है। जितने दुश्मन थे मक्के में वो हमेशा चाहते थे कि कब मौका मिले सरवर कायनात को कत्ल करें, लेकिन जनाब अबू तालिब
उस शख्सियत का नाम है कि रात भर जागते थे, सरवर कायनात की बिस्तर को बदलते रहते थे और सरवर कायनात की बिस्तर को अपने बेटे को सुलाते रहते, इसलिए कि नबूवत को बचाना था, आखिरी नबी थे। एक बार जो है बहुत बड़ा कहत पड़ा उनके, इतना कहत पड़ा कि सब के सब परेशान हुए। मिलता है कि वहाँ पर 40 कबीले थे, 39 कबीले उनके थे, एक कबीला बनी हाशिम। सब ने एक जगह मीटिंग की, कहा कि हम लोग थक चुके हैं, बहुत बारिश नहीं हो रही है, ऐसा किया जाए कि सब के सब अपने अपने दूध को लेके जो है वहाँ चला जाए, मैं सहरा में चल के जो है दुआ किया जाए, हो सकता है कि बारिश हो जाए। सब के सब अपने दूध को, ये मीटिंग हो गई। कहा कि एक बच रहे हैं जनाबे अबू तालिब, आज तक तो हमने देखा ही नहीं कि उनका बुत कैसा है। वो ये समझ रहे थे माज़अल्लाह कि जनाबे अबू तालिब जो है बुतप्रस्त हैं। ये नहीं जान रहे थे कि जनाब अबू तालिब बुतप्रस्त नहीं है, बल्कि जनाब अबू तालिब है मुहाफिज इस्लाम है, मुहाफिज रसूल है, मुहाफिज कुरान है, जनाब अबू तालिब है। पहुँचे, दिल में तमन्ना थी कि है आज तो कम से कम ऐसे मौके पर देख लेंगे। जनाब ने ठीक है, दिन मुकर्रर हुआ, सब के सब चले, बहुत पहले से पहुँचे हुए थे 39 कबीले वाले। बस इसी शक में था कि आज कम से कम जो है देखने को आ जाएगा, लेकिन जब पहुंच के सब के सब मजमा लगा हुआ है तो जानते हैं कि इंतजार की घड़ी बहुत ज़बरदस्त होती है। वो 39 बुत पहुंचे थे, किसी को किसी के बुत का इंतजार नहीं था, लेकिन एक जो है सर अबू तालिब का इंतजार था, कश्म थे कि कैसा बुत है। जान नहीं रहे कि आज वो सामने आने वाला है कि सब बुत जो है सरखम हो जाएंगे या चकनाचूर हो जाएंगे। जब चले हैं जनाब अबू तालिब का जो अंदाज दूसरा है। आज कांधे को जो है सरवर कायनात को लिए हैं, सरवर कायनात की उम्र 5 साल, दोनों हाथों को पकड़े हुए हैं। जब देखा बड़ी परेशान हुए कि तो वही को लेकर आ रहे हैं कि जो बुत को जो है मिटाने वाला है, बुत को तोड़ने वाला है। हो सकता है कि आज जो है हमारे सब बुतों की जो है शामत आने वाली है। अब वाकई में शामत आई, सरवर कायनात को लेके गए, लेके जाने के बाद दोनों हाथों को उठाया सरवर कायनात का दुआ के लिए। अब देखिए यहाँ रिसालत भी हाथ उठाए हुए है, मुहाफिज रिसालत भी हाथ। जब भी बच्चे का आप हाथ उठाइएगा दुआ के लिए, या तो मातम में देखिए उठाते हैं तो आपका भी हाथ मातम में उठता है, दुआ के लिए बच्चे का हाथ उठाते हैं तो आपका भी हाथ साथ साथ। यहाँ क्या है, सरवर कायनात का हाथ ऊपर है, मुहाफिज रिसालत का हाथ नीचे है, दुआ हो रही है। जैसे ही परवरदिगार में देखा कर दो हस्तियां जो दुआ करेंगे, फौरन बादल आया, खूब पानी बरसा, इतना पानी बरसा कि सब बुत जो है पानी में डूब गए। आज जो है बुत नहीं डूबे, बल्कि सरवर कायनात ने जो है बुत प्रस्तों को भी डुबा दिया। ये अदब परवरदिगार आलम को इतनी पसंद पड़ी है अबू तालिब की। कहा क्या है अबू तालिब, कुरान कहता है हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान। तूने जो है इस सहरा में जो है सरवर कायनात के हाथ को बुलंद करके पानी के लिए दुआ किया, इसका एहसान नहीं होगा। गदीर खुम के मैदान में तुम्हारा हाथ होगा, अली का हाथ हाथ में होगा, और तुम जो वहाँ पर जो है मन तुम तो मौला हो, वहादा अली मौला करके एहसान का बदला एहसान। आज दो मासूम की शहादत की तारीख। सरवर कायनात ने जो देखिए आखिरी वक्त में ये सब छिपाते हैं, आखिरी वक्त में मिलता है। आज जो है एक फिरका जो है जो कहता है कि मुझे कुरान काफ़ी है, इसकी बुनियाद उसी वक्त पड़ी थी। इनकी यहाँ भी है ये रवायत, सरवर कायनात ने जो है आखिरी वक्त में कलम कागज मांगा था, ले आके दो। लेकिन खलीफा दोयम ने जो कहा कि मेरे लिए बस कुरान काफ़ी, ये कह के साबित कर दिया। ये जान रहे थे, जिसको गद्दे की लालच थी उसको ये डर था, कागज़ कलम दिया तो हो सकता है कि मुझे गद्दी ना मिले, इसीलिए कागज़ कलम नहीं दिया। सबसे पहला जो जुल्म किया है सरवर कायनात को वही किया। जुल्म तो बहुत हुआ, लेकिन ये बहुत बड़ा जुल्म है। कहलाने को सहाबी सरवर कायनात में आ गए, तुम तो हुकूक का इनकार कर रहे हो। अगर वाकई में वहाँ
सब के सब कलमा गो मुसलमान अगर सही होते, सरवर कायनात होते, तो उनको पकड़ के जो है वहीं पर जो है उनका खात्मा कर देते। लेकिन क्या था कि सब अभी नया नया इस्लाम था, सबके दिल में था खाली बसा, किसी तरह से गद्दी मिल गई अगर इनको तो फिर हमारा क्या होगा। मौला घराने पर जो है जुल्म हमेशा हुआ। इमाम हसन का एक वाक़या, उसके बाद आपके मसाइब। इमाम हसन अलैहिस्सलाम जो है, आज देखिए एक तरफ जो है मौला कायनात जो है सूखी रोटी खा के, जौ की रोटी पानी में भिगा के खा के जो है ये सबक दिया है कि अगर फाके पर रहना, जौ की रोटी खाना नमक के साथ, तो ये अफसोस न करना कि तुम जो है जौ की रोटी खा रहे हो, ये ख्याल करना कि मेरा इमाम भी जौ की रोटी खाया था। एक तरफ जो है जिसके यहाँ दस्तरखान चल रहा है, खूब परवरदिगार आलम ने दिया है दौलत, खूब दस्तरखान चला रहा है, उसको भी शर्मसार न किया इमाम हसन के दस्तरखान में। इमाम हसन ने कहा कि दस्तरखान भी खूब सजाओ। एक तरफ एक शख्स पहुंचा, देखा मौला कायनात को जो है सूखी रोटी खाते हुए, कहा कि या अली, आप जैसा आदमी जो है, आप जैसा इमाम जो सूखी रोटी खा रहा है, कहा ये तो अल्लाह की रज़ा है। कहा कि तुम दूसरा खाना चाहते हो तो चले जाओ, बगल में दस्तरखान लगा हुआ है। गए वहाँ पर, या जाने के बाद देखा दस्तरखान लगा हुआ है, खूब शेर होके खा रहा है। इमाम हसन दस्तरखान चल रहा था, शेर होके खा रहा है। शेर होके खाने के बाद खाता भी जा रहा है, कुछ जेब में रखता जा रहा है। इमाम हसन इस्लाम आए, कहा कि अरे भाई क्यों रखते जा रहे, पहले खा लो, अगर कहोगे तो तुम्हारे बच्चों के लिए भी जितना कहोगे हम दे देंगे। कहा कि क्या इमाम हसन, ऐसी बात नहीं है। वहाँ पर जो है एक बुजुर्गवार जो है जो सूखी रोटी खा रहे हैं, हमने सोचा है कि कम से कम अच्छी गजा जाएगा। क्या कहना ना, तुझे नहीं मालूम, वो मेरा बाबा अली है। मेरा बाबा अली जो है गुर्बत को पहचानवा रहा है, हम जो है अमीरी को पहचानवा रहे हैं। मान इस्लाम में दोनों है, अगर दिया है तो खूब लुटाओ इस्लाम पर, अगर नहीं दिया है तो सब्र करो अल्लाह के ऊपर। इसलिए कि सब्र सबसे बड़ा है, पूरी कुर्बानी जो सब्र पर है, इन्नल्लाह मास्साबिरीन। इमाम हसन अलैहिस्सलाम देखिए करबला से पहले देखिए सबने सब्र किया। सब्र का जो है इतना बड़ा पैमाना है कि सब्र जो है इस घराने के अलावा, एक दिन मैंने पढ़ा भी था, नबियों ने भी सब्र किया, लेकिन कहीं कहीं पर सब्र जो है आखिरी मंजिल पर, आप जब देखिएगा तो सब्र का, उसको हम टूटना नहीं कहेंगे इसलिए कि नबी के खिलाफ बोलना, लेकिन सब्र कहीं कहीं पर, जैसे मान लीजिए काबिल ने हाबिल को कत्ल किया, बाप की मोहब्बत थी, थोड़ा सा मोहब्बत आई होगी, जनाब नूह ने गिरिया किया, खूब गिरिया किया, कश्ती बनी नजात की, लेकिन वहाँ एक जुमला है, पालने वाला मेरा फर्जंद है। अल्लाह ने क्या कि तेरे हाल में नहीं है, मोहब्बत का तकादा था। जनाब इब्राहिम की सब्र की मिसाल बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी आग सुलगाई गई, लेकिन जो है आखिर मौके पर जब जिब्रील आए हैं, कहा क्या इब्राहिम मदद तो कहिए, लेकिन क्या कहा कि मदद तो है, लेकिन जिससे मदद है वो जान रहा है। उसके बाद जनाब मूसा चले, फिरौन पीछे से हमला करने वाला है, अब आखिरी मुकाम है, क्या कि परवरदिगार आलम क्या करें, हम कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहा कि आसा मारो, रास्ता बना। इसी तरह जो है, लेकिन इस घराने की सब्र जो है, आइए सबसे बड़ा सब्र अगर देखना है तो करबला के मैदान, इमाम हसन ने भी बहुत सब्र किया, इसलिए कि सब मौला सरवर कायनात में सब्र किया। उसके बाद सबसे बड़ा सब आज करते के इल्ज़ाम लगाते हैं, जब दरवाजे पर जो है आग लकड़ी लेके जो है लोग इकट्ठा हुए, तो लोगों ने कहा कि शेरे खुदा अंदर थे, आखिर बाहर क्यों नहीं आए? इसका जवाब आप क्या दीजिए? आप यही इसका जवाब दीजिएगा कि मौलाए कायनात आते, लेकिन जब तक सरवर कायनात थे, जब तक सरवर कायनात को कोई यहाँ चाहती थी, तो उस वक्त जो है मुहाफिज मौलाए कायनात थे, हर मौके पर मुहाफिज थे मौलाए कायनात। लेकिन सरवर कायनात की रहलत के बाद अब अली के दुश्मन, उस वक्त रसूल के दुश्मन थे तो मुहाफिज मौलाए कायनात थे, अब दुश्मन किसके हैं? अली के दुश्मन। तो अब जनाब फातिमा ज़हरा ने कहा, अली चाहते थे निकलने के लिए, लेकिन जनाब फातिमा ने कहा
کہ اے علی آپ نہ نکلیے، اس وقت تک آپ نے جو ہے محافظ رہے بابا کے، اب ہم آپ کی محافظت کریں۔ لیکن کیا ہوا، دروازے پہ گئی، آگ لکڑی رکھا ہوا، جناب فاطمہ زہرا کے پہلو پہ جلتا ہوا گر گیا، اور بابے کا اتنا ہی ظلم نہیں ہوا، یہاں تک کہ جناب فاطمہ زہرا کو اپنے بابا کو رونے نہیں دیا۔ اس کے بعد آئیے امام حسن کی رحلت ہوئی، امام حسن کی رحلت بھی ہوئی، جنازہ بھی تیار ہوا، ایک بار جنازے پر تینوں کی بارش ہوئی، پھر جو ہے کفن جو خون آلودہ ہوا، پھر آیا، پھر کفن دوسرا تیار کیا گیا، اس کے بعد دفن کیا گیا، اور باب ادا اس کے بعد۔ لیکن یہ ہے کہ میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ کو کفن بھی ملا، غسل بھی ہوا، مولا کائنات نے نماز بھی پڑھی اور جنازہ دفن ہوا۔ امام حسن سے بھی کہوں گا اے مولا امام حسن آپ کا بھی جنازہ تیار کیا گیا، غسل بھی دیا گیا، اس کے بعد جو ہے کفن پہنایا گیا، آپ کو جو ہے جنت البقیع میں۔ لیکن ہائے کربلا کا میدان آئیے، کربلا کے میدان میں مولا حسین کا صبر جو ہے اتنا بڑا صبر ہے، اس صبر کی مثال آج نہیں ملے گی آپ کو، اور اسی صبر کا نتیجہ ہے کہ آج ہم جو دنیا کرتے ہیں، روتے ہیں، اس لیے کہ ہائے میرا مولا۔ آپ دیکھیے ایک گھر سے جو ہے ایک جنازہ نکلتا ہے، ایک کوئی قتل ہو جاتا ہے، ایک کوئی شہید ہو جاتا ہے، کہ کتنا گریہ ہوتی ہے۔ اور گریہ دیکھ کا ہونے کے ساتھ ساتھ یہ آپ غور کیجئے گا، اگر کسی کے گھر ایک میت ہو جاتی ہے تو آس پڑوس رشتہ دار آتے ہیں، آنے کے بعد شفقت دیتے ہیں، شفقت دینے کے بعد جو، لیکن ہائے میرا مولا حسین وہاں پر جو ہے ایک بیٹھ صاحب شہید ہو رہے ہیں، جناب قاسم کی شہادت ہوئی، جناب قاسم کی شہادت کے بعد ہائے میرا مولا حسین جب گر گیا ہے جناب قاسم کی لاش کے پاس، کیا دیکھا، ننھے مجاہد کا جو ہے لاشا جو ہے گھوڑوں کے ٹاپوں سے جو ہے قربان ہو چکا ہے۔ اور باب اذان سب سے بڑا صبر جو ہے جوان مولا عباس کا جو ہے، مولا عباس نے جب آواز دی، جب گئے کیا دیکھا، پہلا شانہ ملا، اٹھا کے چوما، پھر دوسرا شانہ ملا، اس کے بعد جناب عباس کی لاش پہ پہنچے، وہاں صبر کیا، اس کے بعد جو ہے سب سے بڑا صبر دیکھنا ہے تو آئیے اکرلی الجوان علی اکبر جو ہے بابا سے مرنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ مولا حسین نے کہا، مولا حسین اے علی اکبر تم نانا کی شبیہ ہو، تم کیسے، کہا کہ اے بابا سب تو جا چکے ہیں، اب مجھے بھی مرنے کی اجازت دیجئے۔ جناب امام حسین نے جو ہے جناب علی اکبر کو اجازت دی، جناب اکبر گئے، ہونے کے بعد شہید ہوئے، شہید ہونے کے بعد جناب علی اکبر نے بابوں کو آواز نہیں دی۔ اب بوڑھا باپ جب جوان بیٹے کے پاس پہنچ رہا ہے تو گھٹنیوں چلتے ہوئے پہنچا، آئے علی اکبر، آئے علی اکبر، جوان بیٹے کے سینے سے برچھی کا پھل کھینچ کے کہا کہ اے بابا آئیے دیکھیے میرا سب جو ہے کربلا میں جو ہے جوان بیٹے کے جو ہے سینے سے برچھی کا، اور باب ادا یہی نہیں تھما، اس کے بعد جیسے امام حسین نے صدا لگائی حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا، 6 ماہ کے علی اصغر نے جو ہے اپنے کے جھولے سے گرایا، مولا حسین لے کے گئے، جناب علی اصغر کو بھی 3 پھل کا تیر لگا۔ اب جو ہے اس بات کا جو ہے ٹھات بار امام حسین علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ جناب باپ سے کہہ کے لائے تھے کہ بچے کو پانی پلائے، لیکن بچے کو 3 پھل کا تیر، اور باب اذان اس کے بعد مولا حسین کا صبر دیکھیے۔ اب دیکھیے جب جھیل سے زمین پہ ہے اس وقت کتنا سخت امتحان ہے، سوانے دیکھو سورج ہے، اکند خنجر ہے، اور باب اذان اس وقت مولا حسین نے صبر کر کے اتنی بڑی قربانی دی کہ آج پوری دنیا میں جو ہے یا حسین یا حسین یا حسین، آپ کے سامنے دیکھیے امام حسن کا جنازہ بھی آ رہا ہے، سرور کائنات کا جنازہ آ رہا ہے، آپ اور رات اٹھ کے امام زمانہ کی خدمت میں پڑھتا کیجیے۔ آئے سن خدا، آئے رسول خدا، آئے امام حسن، پاپا جاؤ، بولے امام جاؤ، پاپا جاؤ، آئے امام حسن، آئے رسول خدا، آئے امام حسن، سچے آئے رسول خدا، ادھر ادھر، آئے امام حسن، آئے رسول خدا۔
ہائے امام حسن ہائے رسول خدا 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 روتے ہیں اہل حرام ہو گئے رخصت حسن ہائے امام حسن ہائے امام حسن روتے ہیں اہل حرام ہو گئے رخصت حسن ہائے امام حسن ہائے امام حسن کانپ اٹھی یہ زمین ہل گیا چرخے کوہن ہائے امام حسن ہائے امام حسن فاطمہ کے لال کو مہر دغا دے دیا سبز قبا پھول کو آئے یہ کیا دے دیا سبز قبا پھول کو آئے یہ کیا دے دیا سوگ میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے سارا چمن
यतीम हसन आए इमाम हसन, आए इमाम हसन। रोते हैं अहले हराम, हो गए रोशन हसन। आए इमाम हसन, आए इमाम हसन। जिसको है इसकी खबर, सर पे है कितना इमाम, मुंह से निकलते रहे टुकड़े जिगर के तमाम, मुंह से निकलते रहे टुकड़े जिगर के तमाम। सारा लहू जल गया, हो गया नीला बदान। आए इमाम हसन, आए इमाम हसन। रोते हैं अहले हराम, हो गए रोशन हसन। आए इमाम हसन, आए इमाम हसन। जिए जब तलक खूब सताए गए, घर के भी ताबूत पर तीर चलाए गए, घर के भी ताबूत पर तीर चलाए गए। खून में डूबा बदन, हो गया छलनी कफन। आए इमाम हसन, आए इमाम हसन। रोते हैं अहले हराम, हो गए रोशन हसन। आए इमाम हसन, आए इमाम हसन। कांप उठी ये ज़मीं, हिल गया चरपे को हाय। क्या हुसैन, आए इमाम हसन, आए रसूल खुदा। 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 आए इमाम हसन, आए कैसे छुट के वतन जाते हो जाओ भाई, कैसे छुट के वतन जाते हो जाओ भाई।